उत्तर मुंबई में सेवा और संघर्ष का नाम ही है सांसद गोपाल सेट्टी। दरअसल सांसद गोपाल सेट्टी के प्रयत्न ने एक बार फिर से जैन समुदाय के लिए एक बड़ी खुशी दी है। आपको बता दें कि श्री वर्धमान भक्ति श्वेतांबर ईरानी जैन संघ की तरफ से ईरानी वाली जैन उपासना का शानदार उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन सांसद गोपाल सेट्टी के सानिध्य में किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस उपासना को लेकर सांसद गोपाल सेट्टी ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। यही वजह है कि सांसद गोपाल सेट्टी का आज भव्य स्वागत सत्कार समाज के द्वारा किया गया। इस मौके पर समाज की तरफ से जो बातें कही गई वो बेहद ही अविस्मरणीय, क्योंकि सांसद गोपाल सेट्टी का प्रयत्न हमेशा से समाज के उत्थान के लिए रहा है। इस मौके पर सांसद गोपाल सेट्टी ने क्या कुछ कहा वह तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। समाज को जीवंत रखने के लिए इस उपासना को 8 करोड़ रुपया के 8.5 करोड़ रुपया भेगा थशे त्यारे गुरुदेव पाछा અહીં આવ્યા ત્યારે અમે કીધું કે ગુરુજી કીધું કે નહીં ધવલભાઈ, મને પૂરી ખાતરી છે કે હું 7.5 કરોડ થી 8 કરોડ રૂપિયા ભેગા. મેં કીધું ગુરુદેવ સાધારણના પૈસા તો તમે પણ કમલેશભાઈ જેમ દેરાસરનો ચડાવો હતો ત્યારે મને કીધું હતું કે ધવલભાઈ ગમે તે થાય પહેલો ચડાવો જો પહેલી જે શરૂઆત છે ને એ જો ઓછી થશે ને તો બધા ઓછાથી જ બોલશે. જેમ આ ભાઈએ આપણે ચડાવો ચાલુ કર્યો ને તો મને પૂછ્યું કે કેટલાથી ચાલુ કરું, તો મેં કીધું 1100 રૂપિયાથી ચાલુ કરું. તો વિપુલભાઈએ 9,999 રૂપિયા કીધા. એટલે શાસન છે ને જયવંતુ છે. શાસન કોઈ એ વ્યક્તિથી ચાલતું નથી. શાસન જયવંતુ છે અને યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેવો એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એની સામે તમને કરેલી મદદ તમે ક્યારે બી જોતા નથી, એને આપેલો ભોગ આપણે જોઈ શકતા નથી. એમની નથી, અમારા બધાની છે. પણ એ કહી શક્યા અને હજુ જિમ્મેદારી બાકી છે એટલે હું નથી બોલી શક્યો. અને અપમાન સહન કરીને બી ભગવાને આપણને જે શક્તિ આપી છે ને એ શક્તિમાંથી જાણીને પણ આપણે છૂટા થઈએ એ બરાબર નથી. નહીં કરે અને આપણે કોઈનું ઋણ નહીં, પણ આપણે આ જગ્યા પર આપણે જન્મ ધન લગાડવું પડે. અને ભગવાને તમને લક્ષ્મી આપી છે, તમે શ્રેષ્ઠ અને યોગ્ય જગ્યાએ ખર્ચી, એનો હું ગર્વ અનુભવું છું કે તમે અમારા પ્રમુખ છો. તમે ઈરાનીવાડી જૈન સંઘના પ્રમુખ છો. તમારા પરિવારને, તમારા મિત્રને, તમારા મિત્રના પરિવારને 1 કરોડ રૂપિયા બોલવો ઈરાનીવાડીમાં બહુ ઈઝી નથી. જ્યારે તમે 1 કરોડનું પણ બજેટ નહોતું ને તમે 2 કરોડ 7 લાખ રૂપિયામાં ચડાવો લીધો અને સપોર્ટ કર્યો છે. અને આજના દિવસે બધાને થોડું લાંબુ લાગ્યું છે, પણ જો આવું ન બોલીએ, જે વ્યક્તિ આ માટે અહીંયા આવેલા છે અને આપણે એમનું સન્માન. 2 મિનિટ સાહેબ. નહીં સાહેબ, ચૂંટણી સાહેબ જેમ કમલેશભાઈએ કીધું એ જ ઉદાહરણ હું આપી રહ્યો છું કે સાહેબ કદાચ કોઈ કારણસર આ ઉત્તર મુંબઈ કે મુંબઈનું કમનસીબ હશે, પણ કોઈ તમને કદાચ ટિકિટ કોઈ કારણસર તમને ટિકિટ નથી મળી, પણ અમારા દિલમાં આ લાખો લોકો જેને તમને 7 લાખ ને 6 લાખ ને 5 લાખ વોટ આપે ને એના દિલમાંથી કોઈ તમને નહીં કરી શકે. યસ સાચી વાત છે. કારણ કે એ દિવસે અમે આંદોલન પણ કરી રહ્યા હતા, પણ સાહેબે કીધું કે નહીં, જે પાર્ટીએ મને 30 વર્ષ ટિકિટ આપી છે તો એનો ઉપકાર તો આપણે ભૂલવો ન જોઈએ. અને યોગ્ય વ્યક્તિને ટિકિટ આપી છે અને સાહેબે પહેલી સેકન્ડે એમનું વક્તવ્ય આપ્યું એટલે લોકોને એમ કીધું કે તમે મારા માટે ઓલું નહીં કરતા, એના કરતા પણ સારી વ્યક્તિ આપી છે. પણ સાહેબ જે અગણિત ઉપકાર આપના આ બધા સમાજો અને સંઘો પર છે એ કદાચ કોઈ મિટાવી નહીં શકે. સમય આવશે, એનું ઋણ ચૂકવવાનો ટાઈમ પણ આવશે સાહેબ. અને અમે દેરાસરોના સર્જન ના થયા હોય આ इजी नहीं, જેને ખબર છે ને જેની આ લાઈન ईरानीवाड़ी का जैन संघ का उपाश्रय जिसको कहते हैं, ये इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी था और प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ में मुंबई महानगर पालिका का एक गाइडलाइन है 1962 का के पहले का स्ट्रक्चर था। अब इसको इन्होंने रिपेयरिंग कर लिया। बगैर पैसे से धवल भाई बोरा, कमलेश भाई, अजीत भाई, ये सारे लोगों ने मिलकर काम का प्रारंभ किया और 100 फुट के दुकान में फरसान जिसको कहते हैं गुजराती में, वो बेचने वाले ने 2 लाख रुपए से लेकर
1 करोड़ से भी ज्यादा का धन, 2-5 करोड़ रुपए का आवश्यकता था, 29 करोड़ रुपया इकट्ठा किया इन्होंने और इतना शानदार उपाश्रय भी बनाया। बगल का जो जगह था उसको भी खरीद लिया इन्होंने और मैं मानता हूं कि ये समाज को प्रेरणा देने वाली बात है। और ऐसे समय में जहां पर मेरा पार्टी का नगर सेवक हो, मेरा पार्टी का विधायक हो, मैं सांसद हूं, महाराष्ट्र में मेरी सरकार है, दिल्ली में मेरी सरकार होने के बावजूद अगर कोई म्युनिसिपालिटी के लोग आकर तोड़ देवे तो फिर हम जैसे लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर आया, मेरी जो भी क्षमता थी उसको मैंने लगाया, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता सब जुड़ गए और महापालिका को पीछे हटना पड़ा और इसका आज उद्घाटन हुआ और मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे काम करने के लायक कहो, योग्य कहो बनाया और जितना भी मेरे में क्षमता है उसको पूरा उपयोग करने का मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ और समाज उससे प्रभावित होकर समाज के लोग मुझसे जुड़ते गए और ऐसा करते 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 उत्तर मुंबई में एक बहुत बड़ी ताकत हम सब लोगों ने मिलकर निर्माण किया है। आज उत्तर मुंबई में 4 चुनकर आए हुए विधायक, 2 विधान परिषद के विधायक, ऐसे 6 विधायक, सांसद करके मैं काम करता हूँ, 24 हमारे पार्षद नगर सेवक काम करते हैं और असंख्य पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उत्तर मुंबई में एक बहुत बड़ी ताकत हमने निर्माण की है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में वर्तमान में जो हमारे उम्मीदवार पीयूष गोयल जी चुनाव लड़ रहे हैं उनको मिलेगा और पीयूष गोयल जी के साथ में मिलकर हम उत्तर मुंबई को आने वाले दिनों में और उत्तम जो उनका एक सपना है बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब राजनीतिक ढंग से कहो या तो आप जैसे पत्रकार लोग उनको ये पूछते हैं तो क्या आपको ये कहना है कि उत्तर मुंबई भी उत्तम नहीं है? मैं ऐसा कहता हूँ कि उत्तम बनने के बाद में भी उसको अति उत्तम बनाने का भी मौका होता है ना। काम कभी भी पूरा नहीं होता है, काम आप कितना भी करो तो कम ही है। मोदी जी ने इतना सारा किया तो क्या पूरा हो गया? क्या तो पूरा हो गया तो फिर चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है? और अच्छा करने के लिए प्रयास करने का होता है। तो उत्तर मुंबई को और उत्तम बनाएंगे, उसके बाद में आने वाले लोग अति उत्तम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ये सारा संचार चलता रहता है, उसमें हम एक निमित्त बनकर काम करते हैं और काम करते जो हैं। उपाश्रय है वो 30 यानी 1962 से यहाँ पे है और इसको हमारी मीन्स बड़ा बनाने का या इसको रिनोवेट करने का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई जिसमें हमको हमारे यहाँ के विधायक योगेश सागर जी ने हमको मदद किया और सांसद गोपाल शेट्टी जी ने मदद किया, यहाँ के लोकल नगर सेविका लीना बहन, यहाँ की सारी जनता और हर एक पार्टी के लोग, हर एक समुदाय के लोग, हर एक, ऐसा नहीं कि खाली जैन समुदाय के लोगों ने मुझे मदद किया, हर एक समुदाय के लोगों ने, चाहे वो मराठी हो चाहे वो कोई भी भाषिक हो, वो सभी ने हमको मदद किया। यहाँ पे हम लोग एक भाईचारे की तरफ से रहते हैं और सबको ऐसा पता था कि भाई आज ये घर को एक रिनोवेट करके एक अच्छी तरह से यहाँ के गुरु भगवान आए और यहाँ पे साधना कर सके, लोगों को एक संस्कार का एक बोध पाठ दे सके, उसका एक लड़ाई था और वो लड़ाई आज हम लोग एक अच्छी तरह से जीत के उसका एक परिणाम, एक रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो जिन जिन्होंने हमको इसमें मदद किया है और जो इसमें जिसने हम योगदान दिया है वो सबका ईरानीवाड़ी जैन संघ की तरफ से मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और भगवान उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखे, ये भी मेरी मनोकामना व्यक्त करता हूँ। गोपाल शेट्टी जी, एक मरीज जब कोमा यानी बीमार होता है या उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं और अपने को 1 सेकंड भी अगर वो एम्बुलेंस लेट आती है तो वो आदमी को कुछ भी हो सकता है। वैसे हमारे गोपाल शेट्टी जी है कि हमारे जैन समाज में, कोई भी समाज में कभी भी कोई भी आपदा आती है और एक फोन कॉल से वो कोई भी काम छोड़ के, उनको पता है जमीन से वो एक झोपड़पट्टी से, यानी उनको पता है कि छोटे आदमी का क्या वेदना होता है, तो एक फोन कॉल से वो एक नेस्को में एक मिनिस्टर के पास में मीटिंग था, वो छोड़ के उनको मालूम है कि अगर मैं टाइम पे अगर आधा घंटा भी लेट पहुंच गया तो इसका परिणाम क्या होगा, समाज को नुकसान क्या होगा। इसके लिए खाली एक फोन कॉल से वो गोरेगांव का अपना जो प्रोग्राम था वो छोड़ के हमें बचाने के लिए, उनको सच्चाई मालूम थी, उनको इसका कायदा कानून का नियम मालूम था और वो उसको ध्यान में रखते हुए खुद यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि एक सामान्य आदमी का बात प्रशासन नहीं समझ सकता है, मगर एक जनप्रतिनिधि जब आता है तो उनको पता होता है कि गोपाल भाई कभी है ना ऐसे कोई काम में खड़े नहीं रहते जिसमें एक शक्ति नहीं होती है, जिसमें कायदा की ताकत नहीं होती है। वो डेप्यूटी मेयर भी रहे, मेयर इन काउंसिल भी रहे, उन्होंने मुंबई का भी, खाली उत्तर मुंबई का नहीं, मैंने देखा है उनको कि अलग अलग जगह से उनको फोन आता है। ऐसे मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा वो प्रॉब्लम, वो बिल्डिंग टूटने वाला था, वो आदर्श के बाजू में था, उनका सोल्यूशन लिया, उसके लिए बहुत धरना हुआ, बहुत कुछ हुआ,
मगर गोपाल शेट्टी जी को उसका कायदा की नॉलेज था कि भाई इसको कैसे रेगुलराइज किया जाए, और उन्होंने वहां पे जाके अपना जो भी अनुभव था वो बताया, और वो